Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 19. Today's topic is about the country risk analysis. Students, we have been talking about the cost of capital and capital budgeting process in our previous lecture. Today's topic is country risk analysis. जब हम capital budgeting के बारे में बात कर रहे थे और cost of capital के बारे में बात कर रहे थे तो I kept you reminding about the country risk analysis number of times. बहुत सारी slides पे हमने इसका जिक्र भी किया. What is meant by country risk analysis? Why it is important कि हम जिस country के अंदर जाके investment करने जा रहे हैं उसका risk analysis करें. Why is it so कि हमारे लिए वो इतना imperative है to look at all the factors that are going to affect our business in that particular country. That is the basically objective of today's lecture. Country risk analysis हम क्यों करते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, what are the underlying reasons, why do we do it, or why it is compulsory and why it is imperative to perform this analysis. We are going to do all this. We will also be looking at the benefits that we are going to derive अगर हम country risk analysis को properly perform करते हैं. तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं. कंट्री रिस्क एनालिसिस छोटा सा एक मैं आपको पैरा पढ़ के सुनाती हूँ. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. Country risk analysis is the potentially adverse impact of a country's environment on an MNC's cash flow. जो MNC's के cash flows हैं, they are going to be largely affected by the country's risk analysis. Why? Country risk analysis can be used to monitor countries where the MNC is currently doing the business. पहली बात तो ये कि हमें country risk analysis की मदद से ये पता चलता है कि MNC presently किन किन countries के अंदर काम कर रही है और हम मॉनिटर कर सकते हैं उन कंट्रीज की इन्वायरमेंट को विद द हेल्प ऑफ कंट्रीज एनालिसिस. लाइक कंट्री रिस्क एनालिसिस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर एनीवेयर इन द कंट्री, वी आर गोइंग टू परफॉर्म कंट्री रिस्क एनालिसिस. और सर हम एक ही दफा परफॉर्म नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू कीप दिस एक्टिविटी ऑन आवर रेगुलर बेसिस. हम उसको बार बार करेंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड सो एज टू लुक कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस कंट्री की एनवायरनमेंट जो है वो अब हमारे बिजनेस के लिए शायद इतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही है, इतनी कंड्यूसिव नहीं रही फॉर रनिंग आवर बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और नॉट. तो फिर हम उसके लिहाज से वहां से डाइवेस्टिंग का प्रोग्राम बनाएंगे. लाइक हम डाइवेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे. क्या मतलब है डाइवेस्टिंग का? मतलब है कि वी आर गोइंग टू take back the investment from that particular country. That is called the divesting strategy. तो students country risk analysis के लिए this is very very important कि हम उसको शुरू में भी करें और this is an ongoing activity. This is a continuous activity that we are going to perform. हम इसको सिर्फ एक दफा perform नहीं करते. We are going to repeat this activity again and again on a continuous basis from the start when we want to make investment decision in a particular country until we want to divest or we want to modify or we want to change, we want to invest more and more. अगर हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहें या वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहें, हो सकता है कि उस कंट्री की सिचुएशन बेहतर हो जाए. अगर उस कंट्री की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे. तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए भी to do more investment or to divest, the country risk analysis is very important. Startups के लिए भी important है कि when we want to enter, उसके बाद भी it is going to be an ongoing activity. So if the country risk level of a particular country begins to increase, the MNC may consider divesting its subsidiary from that particular country. अगर कोई country की environment खराब होने जा रही है, that is deteriorating, then we are going to think about divesting our business out of that country. Events that heighten country risk tend to discourage the FDIs. और उसमें से बहुत सारे events. Can you just think about certain events, international events that are going to discourage or that are going to increase the country risk analysis या that are going to discourage the foreign direct investment. देखें जब भी आप FDI करेंगे, foreign direct investment करेंगे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है that you would like to look at the events, international events that are going to affect your country's environment. So there are certain international activities or international events that are going to affect your business across the border. Number one is terrorist attack. Number two is a major labor strike in the industry.
Number 3, a political crisis due to a scandal within a country. Number 4, concern about country's banking system that may cause a major outflow of fund and the imposition of trade restriction on imports. So it can be the governmental, it can be any outside, it can be across the border, it can be general, it can be industry specific, it can be any other thing that is going to affect your investment. इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है कंट्री रिस्क एनालिसिस से, और कंट्री रिस्क एनालिसिस को हम पढ़ेंगे डिटेल से, राइट. सो एनी ऑफ दीज इवेंट्स कुड अफेक्ट द पोटेंशियल कैश फ्लो टू बी जनरेटेड बाय एन एमएनसी और द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स एंड देयरफॉर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एन एमएनसी. तो हमारी जो फाइनेंसिंग्स हैं जो प्रोजेक्ट की, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय ऑल दीज फैक्टर्स. जैसे हम सब्सिडरी ओपन करना चाह रहे हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट. सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करना चाह रहे हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट. सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज अगेन अ प्रोजेक्ट. वी वांट टू लुक एट द एनपीवीज. हमने कैलकुलेट की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू आर क्वाइट फेमिलियर, आपको उसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है. बट ऑल्सो द कंट्री रिस्क एनालिसिस साइड बाई साइड. इन सारे इवेंट्स का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के साथ बहुत ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है. सो वी वुड लाइक टू लुक एट दिस. So the objectives of this chapter are to identify the common factors used by MNCs to measure a country's political risk and financial risk. अच्छा, दो तरह के risks, number 1 is political risk and number 2 is financial risk. तो हम common factors which are being used by MNCs to measure the country's political risk and the financial risk, we are going to look at that. Political risk से मतलब ये है the changes in the political environment that might affect the international business. Repeat करूँ, the changes in the political environment that might affect the international business. This is the political risk that is you are exposed to. And number 2 is financial risk. Financial risk is that perhaps the business is not being able to perform or to meet its financial obligations. That is called the financial risk. To explain the techniques used to measure country risk and to explain how MNCs use the assessment of country risk when making financial decisions. So we will be also looking at the different techniques that can be used for the country risk analysis, and we are going to explain how MNCs use these assessment of country risk when making the financial decisions. Why country risk analysis is important? Why it is important that we should be doing the country risk analysis? Country risk represents the potentially adverse impact of a country's environment on an MNC's cash flows. Basically जो हम जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, हम जो थ्रू आउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जिस चीज़ की बात करते रहे, जो हमारा क्रक्स था स्टोरी का, दैट वाज द कैश फ्लोज. So the values of these cash flows, they are going to be affected by either the cost of capital, by opting the wrong technique, और हम जो country risk analysis करते हैं वो भी हम इन्हीं cash flows को देखने के लिए कि इसके ऊपर कोई negative या adverse impact ना आए. हमने जितनी भी hedging techniques पढ़ी हैं, जितने भी हमने अभी तक measures पढ़ी हैं to flourish our business across the border in the international environment, we were looking at the cash flows. हम हमेशा कैश फ्लो से ही कंसर्न रहे हैं. वी वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लोज, और कैश फ्लोज की वैल्यू कम ना हो और जो फर्म की वैल्यू है वो कम ना हो. अल्टीमेटली देखें, अगर कैश की वैल्यूज कैश फ्लोज की वैल्यू इफेक्ट होती है, उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आता है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की वजह से आए, चाहे वो एक्सचेंज रेट की वजह से आए, चाहे वो किसी और फैक्टर की वजह से आए, चाहे वो रिस्क एनालिसिस कंट्री रिस्क की वजह से आए, दैट इज ऑल गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्रॉफिटेबिलिटी. ज़ाहिर है कैश फ्लोज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा. जब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आएगा तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अ फर्म. तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे कैश फ्लोज के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो कंट्री रिस्क एनालिसिस को भी हम इसी पर्सपेक्टिव में करते हैं दैट इट इज नॉट गोइंग टू एडवर्सली impact the cash flows of our business. So basically that is what is underlying. Why country risk analysis is important? It can be used, number 1, to monitor countries where the MNC is currently doing business. पहले तो हम मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज करते हैं. मॉनिटरिंग मीन्स के लेट्स से आपका एक MNC है, हेड ऑफिस है,
और आपकी सब्सिडरीज लेट्स से 4 और 5 डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड हैं। अब आपने ये देखना है कि हमारी सब्सिडरी ए बी सी डी, जहां पे आपका लेट्स से ये पेरेंट कंट्री है एंड दीज आर सब्सिडरीज, ये आपकी 4 सब्सिडरीज हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग आप अप्रोच जो भी लें, पेरेंट से, होम से, जो भी आपका क्राइटेरिया आप उस तरह से ले रहे हैं। अब ये जो पेरेंट है दे आर बेसिकली कंसर्न कि जो कैश फ्लोज हैं वो इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। अब ये जो कंट्री रिस्क एनालिसिस है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस एमएनसी फॉर ऑल दीज सब्सिडरीज, के इन सब सब्सिडरीज के अंदर जो बिजनेस हमारे हो रहे हैं वो किस तरह कैसे जा रहे हैं। कंट्री ए का भी हम रिस्क एनालिसिस करेंगे, बी का भी, सी का भी और डी का भी। हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो बिजनेस है दैट इज फ्लरिशिंग गुड और दैट इज इम्प्रूविंग इन कंट्री ए और बी सी डी। हम इनको आपस में भी कंपेयर करेंगे और वैसे भी अदरवाइज भी कंपेयर करेंगे। देन वी विल लुक एट दी स्ट्रेटजीज कि हमने क्या इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करें या ना करें या वहां से डाइवर्स्ट कर लें। दीज आर द इश्यूज। सो एज अ मॉनिटरिंग डिवाइस, नंबर 2 इज एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस। स्क्रीनिंग डिवाइस का मतलब यह है टू स्क्रीन आउट कि अगर हमारे पास लेट से 4-5 कंट्रीज हैं, लेट से कंट्री ए बी सी डी दोबारा ले लेते हैं, और हम उनमें से स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं कि विच वन इज बेटर फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा कंड्यूसिव है, कहाँ पे हमारी टारगेट मार्केट बेहतर है, कहाँ की पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस बेहतर हैं, कहाँ पे जो पॉलिटिकली और लीगली स्टेबल कंट्री है हम वहां पे जाके अपना बिजनेस करें। कौन सा इन कंट्रीज में से टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसी लेके जाना चाहते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, लाइक जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ है, तो क्या हम ऐसा इन कंट्रीज के अंदर हम स्क्रीनिंग करके ये देखेंगे कि विच वन इज बेटर, विच वन इज वर्थ टू कंडक्ट बिजनेस, राइट। So, as a screening device to avoid conducting business in countries with excessive risk, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहाँ पे हम अपना बिजनेस नहीं करेंगे, और जहाँ पे रिस्क कम है तो वहाँ पे हम अपने बिजनेस को ज्यादा ले जाएंगे या ज्यादा फ्लरिश करेंगे। ऑल्सो वी हैव टू लुक एट द कैश फ्लोज। अच्छा, ये तो हमें एक एस्पेक्ट से बात करें, हमने और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। जो हमारा डिसीजन होता है वो होलसम होता है, लाइक वी हैव टू लुक एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वी हैव टू लुक एट द कैपिटल बजटिंग, we have to perform the country risk analysis, so on and so forth। लेकिन सबसे पहले ये होता है, उसके बाद बाकी सब चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया या बाकी के जो डिसीजन है। To revise its investment or financing decisions in the light of recent activities। So we are going to revise investment or financing decisions in the light of recent events। अच्छा, number 1 was monitoring, number 2 is screening and number 3 is revising। रिवाइजिंग का मतलब है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस दोनों को हम रिवाइज करेंगे इन द लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैसे रिवाइज करेंगे? फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम इस तरह रिवाइज करेंगे कि वेदर वी वुड लाइक टू कंटिन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस इन द सेम कंट्री और नॉट। और फाइनेंसिंग डिसीजंस को हम कैसे रिवाइज करेंगे? दैट वेदर वी शुड गो फॉर द डेट फाइनेंसिंग और फॉर द इक्विटी फाइनेंसिंग, एंड फ्रॉम विच कंट्री वी वुड लाइक टू हैव द डेट फाइनेंसिंग एंड फ्रॉम विच कंट्री वी वुड लाइक टू हैव द इक्विटी फाइनेंसिंग। और फिर हम उसमें से कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? हाउ मच ऑफ द परसेंटेज शुड बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट कंट्री एंड हाउ मच परसेंटेज शुड बी टेकन फ्रॉम द होम कंट्री। सो दीज आर ऑल द डिसीजंस दैट वी आर गोइंग टू टेक, और we want to revise it from the investment and from the financing decision perspective। Okay जी, then is the political risk factors। political risk factors जिसके अंदर जो है number 1 is attitude of consumers in the host country। some consumers are very loyal to the locally manufactured products। अच्छा, before I start with this political risk factors, I would like to read it out for you। An MNC must assess country risk not only in countries where it currently does business but also in those where it expects to export or establish subsidiaries। Several risk characteristics of country may significantly affect performance, and the MNC should be concerned about the likely degree of impact for each। The September 11, 2001 terrorist attack, जिसको हम 9/11 के नाम से याद करते हैं, on US heightened the awareness of political risk। So it was in 2001 जब ये जो political रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, द होल ग्लोब, इट वाज
conscious about that. As one might expect, many country characteristics related to the political environment that can influence an MNC. An extreme form of political risk is the possibility that the host country will take over a subsidiary. अच्छा, जब हम सब्सिडरी किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके बनाते हैं तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो होस्ट कंट्री है वो उसको टेक ओवर कर ले. मतलब ये एक रिस्क है कि होस्ट कंट्री उसको टेक ओवर कर ले फॉर गुड, फॉर देयर ओन बेटरमेंट. तो हमने जिसको इस पर्सपेक्टिव से बनाया था कि हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें और वो फंड्स को रेमिट बैक करें टू दी होम कंट्री, टू द पेरेंट कंट्री, राइट. In some cases of expropriation, some compensation, the amount decided by the host country government is awarded. In other cases, the assets are confiscated and no compensation is provided. यानी कभी कभार ऐसा होता है कि एसेट्स को भी कन्फिस्केट किया जा सकता है. पॉलिटिकल रिस्क, मतलब ये मैं आपको एक्सट्रीम सिचुएशंस बता रही हूँ. इफ पॉलिटिकल सिचुएशंस गो वर्स और वो आपके अगेंस्ट चली जाएं, अनफेवरेबल हो जाएं, तो आइदर टेक ओवर हो जाएगा, होस्ट गवर्नमेंट कैन टेक ओवर दैट, या फिर ये कि वो आपके एसेट्स को कन्फिस्केट कर देंगी. दीज आर द पॉसिबिलिटीज, राइट. सो हियर आर द फॉलोइंग सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. एज यू कैन सी, नंबर 1 इज द एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स इन द होस्ट कंट्री. अच्छा स्टूडेंट्स, हर कंट्री के अंदर, होस्ट कंट्री के अंदर एक उसका अपना कल्चर है, उसकी वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं जिनको लेके वो आगे चलते हैं और उन्हीं से उनके एटीट्यूड्स बिल्टअप होते हैं. लाइक आपका रिलीजन है, आपका ब्रॉटअप है, ये सब चीजें मिक्स करके, ट्रेडिशंस हैं, ये सब चीजें मिक्स करके आपके एटीट्यूड्स बिल्ड करती हैं और वहीं से पर्सनैलिटीज बनती हैं, वहीं से आपकी चॉइसेस बनती हैं. सो यू गो फॉर दैट. एटीट्यूड्स आपके जो कंज्यूमर्स के हैं वो हर कंट्री के डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट मलेशियंस, दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज. कहीं पे भी बैठे होंगे, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो रख रखाव है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इफ वी वांट टू कंपेयर आवरसेल्फ इवन विद द एशियन कंट्रीज, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फर्क है. इवन आवर नेबर कंट्री इंडिया से कंपेयर करके देख लें, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है और उसी कल्चर से हमारे एटीट्यूड्स बिल्टअप होते हैं. एटीट्यूड इज द पार्ट ऑफ दैट. तो कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा हुआ कि सम कंज्यूमर्स आर वेरी लॉयल टू द लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं. अब आपको बात समझ आ रही होगी. देखें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान में यूजुअली ये परसेप्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस, परहैप्स योर्स माइट बी डिफरेंट, कि लोग जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं. ये कहते हैं कि नहीं, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं. ऐसा क्यों है? अगर वो अफोर्ड कर सकें तो दे वुड लाइक टू गो फॉर द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. और आप कहते हैं हाँ, और आप यू फील मोर यू नो प्राउड टू से कि हाँ जी, मैं तो इम्पोर्टेड, फलां चीज तो मेरी इम्पोर्टेड है. ऐसी बात है ना. सो एटीट्यूड्स दे बिल्ट अप फ्रॉम द कल्चर, फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो सम कंज्यूमर्स आर वेरी लॉयल. अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, जापानीज फॉर एग्जांपल, दे आर वेरी लॉयल टू द लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. जैसे जापान के अंदर एक कंपनी है, उसका नाम है गोल्ड स्टार. अब गोल्ड स्टार की कंपनी है और वो उनके ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं. जैसे जापानीज जो है, दे फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस जिसका नाम होता है कायरेट्सू. It is relevant, so I wanted to share it with you. Kairatsu. Kairatsu is the small group of businesses जो जापानीज बनाते हैं. उसके अंदर ये होता है कि जैसे दे आर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर बना रहे हैं तो वो होम अप्लायंसेस भी बनाएंगे, दूसरे भी बनाएंगे, एंड लार्ज रेंज ऑफ एक्टिविटीज. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस रूम में बैठे होंगे, जो एसी चल रहा है वो भी गोल्ड स्टार का है, पंखा भी गोल्ड स्टार का है, कंप्यूटर भी गोल्ड स्टार का है, सर्टेन अदर होम अप्लायंसेस विच आर बीइंग यूज्ड, टीवी भी गोल्ड स्टार का है, फ्रिज भी गोल्ड स्टार का है. वट एवर द एटीट्यूड, वट एवर द लाइकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज, वो तकरीबन एक, इसको हम कहते हैं कायरेट्सू. कायरेट्सू मीन्स कि ग्रुप ऑफ बिजनेसेस जो है वो किसी एक का ओनर है और फिर बाकी उसने ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस को चला रहा है. अब जैसे मैंने आपको एक गोल्ड स्टार की एग्जांपल दी, तो एक यू नेम अ थिंग और हर चीज उसी कंपनी की होगी. पीपल आर वेरी वेरी लॉयल टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड और टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अपनी होस्ट कंट्री की प्रोडक्ट्स को. हमारे मुल्क में भी स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम शायद इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल करना
प्रेफर ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको शुरू में कह रही थी कि शायद हम कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, और कुछ चीजें इवन ऐसी भी होंगी जिसमें हम इम्पोर्टेड को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि आप जिस तरह खानों में जो मिसाले इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको वो इम्पोर्टेड मिसाले दे दिए जाएं तो परहैप्स यू वुड नॉट लाइक टू यूज दैट। जो हमारे ट्रेडिशनल लोग हैं, दे वुड लाइक टू यूज दी लोकल प्रोडक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। थोड़ा सा वो भी वैरायटी, वो भी थोड़ा सा डिफर करता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यू वांट टू यूज। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ वो ये कि सम कंज्यूमर्स दे वुड रियली लाइक टू use the locally manufactured products, and especially when they are quality conscious and the local products are providing the equal quality. For example अगर आप मुझसे पूछें कि local products में अगर हम local products की बात करते हैं तो शायद I would go for the local products of the textile of Pakistan, जिसके ऊपर made in Pakistan लिखा होता है, and I believe कि वो जो quality wise है they are much better as compared to the textile of some other country. तो ये भी कुछ चीजें जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, a mild form of political risk, ये जो एक political risk है to an exporter is a tendency of the resident to purchase only the locally produced goods. For example, if you want to export certain things to a particular country, लेकिन वहाँ पे consumers का attitude ये है कि वो तो सिर्फ अपने ही मुल्क की बनाई हुई चीज इस्तेमाल करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे मुल्क में कोई और कंट्री यहाँ पे लेट्स से अगर मलेशिया वांट्स टू एक्सपोर्ट देयर रेडीमेड गारमेंट्स टू आवर कंट्री, तो हम कहेंगे कि नहीं, हम तो अपनी पसंद करते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। इवन इफ द एक्सपोर्टर डिसाइड्स टू सेट अप अ सब्सिडरी इन द फॉरेन कंट्री, दिस फिलॉसफी कुड प्रिवेंट इट्स सक्सेस। ऑल कंट्रीज tend to exert some pressure on consumers to purchase from locally owned manufactured. In the US, consumers are encouraged to look for the made in USA label. ठीक है ना? MNCs that consider entering a foreign market or have already entered the market must monitor the general loyalty of the consumer towards locally produced products. If consumers are very loyal to the product, a joint venture with the local company may be more feasible. यानी अगर वहाँ के consumers का attitude ऐसा है कि they are more loyal towards the local product, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप वहाँ पे किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लें और फिर आप उस बिजनेस को रन करें। इस तरह ये हुआ कि जो आपके जो लोकल लोग हैं they would definitely buy those products because they were more driven towards purchasing the local products. So ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी being a business investor, जो अगर आप बाहर जाके एंटर होना ही चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बजाय बेहतर यह है कि आप जॉइंट वेंचर कर लें उस किसी लोकल कंपनी के साथ उसी कंट्री के अंदर। सो दैट कैन बी दी बेस्ट आइडिया। सो मैंने आपको जब जापान की एग्जांपल दी, मैंने इवन आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दी, एटीट्यूड्स की एग्जांपल दी कल्चर के हवाले से कि एटीट्यूड्स दे बिल्ट अप and they are being built up from our from our culture, हमारे कल्चर से, हमारे अपब्रिंगिंग से और इन सब चीजों से बिल्ड होते हैं। Now the actions of host government. Actions of host government. The host government may impose special requirements or taxes. The host government may impose special requirements or taxes. कभी कभार ये भी होता है जो actions of host government हैं, they are extremely important because you are entering into the international business and you are opening up a subsidiary over there, या joint venture बना रहे हैं या export कर रहे हैं, whatever जो भी form है। अब वहाँ पे जो होस्ट गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट। तो पहला उसमें यह है कि स्पेशल दे मे इम्पोज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स और टैक्सेस। उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं और स्पेशल टैक्सेस भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर टेकिंग इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दे मे रिस्ट्रिक्ट फंड ट्रांसफर्स, जैसे हमने ब्लॉक फंड्स पढ़े थे कि आपने रेमिट बैक करने हैं स्मॉल परसेंटेज और आप वेरी लार्ज परसेंटेज। कुछ कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि यू हैव टू री इन्वेस्ट दैट। अगर आपको याद हो, हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर ब्लॉक फंड्स के हवाले से एनपीवी की वैल्यू को देखा था कि हाउ इट इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। एंड सब्सिडाइज लोकल फर्म्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट। MNCs can also be hurt by a lack of restrictions such as failure to enforce copyright laws. So MNCs can also be hurt by a lack of restrictions such as failure to enforce copyright laws. ये भी एक बहुत बड़ी reason है. For example,
In 2004, the Chinese government enacted a law requiring computer chips to include security technology that is licensed by Chinese firm. In addition, China imposes a 17% tax on computer chips sold there, but provides a rebate of up to 14% for chips produced locally. This may discourage chip manufacturers such as Intel and Broadcom from selling chips in China. अब देखें उन्होंने अपने लोकल जो चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स हैं, उनको इनकरेज किया फॉर सेलिंग, और जो बाहर से आने वाली हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं. इसलिए इस तरह की जगह के ऊपर दिस में डिस्करेज चिप्स मैन्युफैक्चरर सच एज इंटेल एंड ब्रॉडकॉम फ्रॉम सेलिंग चिप्स इन चाइना. इस तरह के एक्शन से मतलब इंटेल और इनको ये पहले ही समझ जाना चाहिए कि दिस बिजनेस इज नॉट वर्थ ऑफ बी कंडक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. Some MNCs use turnover in government members or philosophy as proxy for the political risk. While this can significantly influence the MNC's future cash flows, it alone does not serve as a suitable representation of political risk. तो students जो host government के actions हैं, they are extremely important. Sometimes even जो आपकी special environment है, जैसे आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल है और इस तरह की चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि नो यू हैव टू पुट अप अ स्पेशल सिस्टम ऑफ जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से, अगर आप वहाँ पे जाके सब्सिडी ओपन करना चाह रहे हैं तो उनके कुछ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं दे आर मीटिंग दोज एंड दे आर सेइंग कि आप अपने वेस्टेज का या एयर पोल्यूशन के हवाले से आप स्पेशल इक्विपमेंट्स करें, लगाएं उनको, फिर इंस्टॉल करें और फिर उनको प्रैक्टिस करें, फिर आप अपने बिजनेस को प्रैक्टिस करें. तो इट इज गोइंग टू बी अगेन a kind of a restriction or a kind of a you can say a barrier or a kind of you can say a requirement from the host government जिसको आप meet करना ही पड़ेगा in order to start up your business over there. So another example is बिल्कुल जो actions of host government से related है, प्लीज गौर से सुने. इन मार्च 2004 एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर रिप्रेजेंटिंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डिसाइडेड टू फाइन माइक्रोसॉफ्ट अबाउट 500 million euros फॉर अब्यूजिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. इन्होंने उनको फाइन लगाया, एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स ने, रिप्रेजेंटिंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट को 500 million euros का. और किस वजह से? फॉर अब्यूजिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. दे आल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ माइक्रोसॉफ्ट कैन बंडल इट्स विंडोज मीडिया प्लेयर. दे आल्सो इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ Microsoft can bundle its Windows Media Player in its portable computers sold in Europe. Microsoft argued that the fine is unfair because it is not subject to such restriction in its home country, the US. Some critics argue, however, the European regulators are not being too strict, but rather than the US regulators are being too lenient. Microsoft ने ये argue किया कि ये जो फाइन आपने हम पे लगाया है, दिस इज नॉट लॉजिकल, दिस डज नॉट मेक सेंस. और लेकिन ये कि यूएस रेगुलेटर्स हैं, दे आर नॉट बीइंग टू स्ट्रिक्ट, लेकिन उसके दूसरी तरफ जो यूएस के रेगुलेटर्स हैं, दे आर बीइंग टू लीनियंट फॉर अलाउइंग दिस माइक्रोसॉफ्ट फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. तो ये एक चीज है. इज दैट क्लियर? So basically this is about the lack of restrictions from the US on the Microsoft. So this example was related with the actions of host government, जिसके अंदर we have been talking about the special requirement of taxes, restrict fund transfers and subsidize the local firms. आगे चलते हैं. Blockage of funds transfer. If the fund transfers are blocked, subsidiaries will have to undertake projects that may be optimal for the MNC. अगर फंड ट्रांसफर्स को हम ब्लॉक कर दें तो क्या होगा? Subsidiaries will have to undertake projects that may not be optimal for MNC. अगर आपने फंड ट्रांसफर को ब्लॉक किया तो कई दफा ऐसा होगा कि जो फिर अवेलेबल है वही करना पड़ेगा. अवेलेबल से मतलब यह है कि might be there are certain projects whose NPV is not sufficient enough
टू बी अंडरटेकन, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लेने पे मजबूर हो जाएंगे जो कि शायद उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते. सो ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Subsidiaries of MNCs often send funds back to the headquarters for loan repayments, purchases of supplies, administrative fee, remitted earnings or other purposes. अच्छा, जो subsidiaries होती हैं ना MNC की, अगर if I am not wrong or if I could refer to the example correctly, it is just like a parent and children relationship. Subsidiary is your child and the home country जो आपका हेडक्वार्टर है MNC, इट इज जस्ट लाइक अ पेरेंट. अब सब्सिडरी चूंकि उसका चाइल्ड है तो जो कुछ भी वो कमाएगा वो उसको देगा असूलन, ठीक है ना. व्हाई? बिकॉज पेरेंट इज ऑलरेडी बर्डन, दे हैव टू पे टू द सप्लायर द MNC, दे हैव टू पे टू द परचेज ऑफ सप्लायर, एडमिनिस्ट्रेटिव फी पे करनी है, रेमिटेड अर्निंग्स और फॉर सम अदर पर्पस लोन रीपेमेंट्स करने हैं. हो सकता है आपने बच्चे को उसने लोन लेके पढ़ने के लिए बाहर भिजवाया, अब उस बच्चे का ये फर्ज है कि वो जो कुछ भी कमाए वो अपने पेरेंट को वापस करे ताकि उसके पेरेंट्स लोन को रीपे करें. गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा? सो द बेस्ट रिलेशनशिप दैट आई कुड मेंशन इट फॉर यू इज दैट MNC का रिलेशनशिप with the subsidiary is just like a parent-child relationship, and the child has to pay off what the parent was expecting out of him. Parent ने ये expect किया कि subsidiary is going to run its own business across the border और वो जो कुछ भी कमाएगा उसको वापस भेजेगा, so as to कि supplier को वो वापस कर सके, लोन की repayments कर सके, etc. So it is about the blockage of funds transfer. So in some cases a host government may block fund transfer. कभी कभार ये होता है कि host government जो है वो funds को block कर देती है, which could force subsidiaries to undertake projects that are not optimal just to make use of funds. अब हमारे पास जो अगर उन्होंने block कर दिए funds तो हमें अब उस फंड को वहीं पे इस्तेमाल करना पड़ेगा और हो सकता है कि हम उसको ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर लें जो कि हमारे लिए वर्थवाइल ना हो. Alternatively, the MNC may invest the funds in local securities that provide some return while the funds are blocked, but this return may be very inferior to what could have been earned on the funds remitted to parent. मतलब वो हो सकता है कि like it is just opting for the choice that you are going to have. हो सकता है कि उस वक्त होस्ट कंट्री के अंदर कोई ऐसी अवेलेबल ऑप्शन ही ना हो या कोई ऐसी बेहतर ऑप्शन ना हो जिससे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लें, तो आपको मजबूरन वहां पे री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज बेसिकली द ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ट्रांसफर, जिससे कई दफा पेरेंट का ज्यादा नुकसान हो जाता है. वाई MNC का ज्यादा नुकसान हो जाता है? उसकी रीजन ये है कि होस्ट गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है कि सिचुएशन इतनी अच्छी ना हो, इतनी कंड्यूसिव ना हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. देन इज द करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी. करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी. The MNC parent may need to exchange earnings for goods if the foreign currency cannot be changed into other currencies. अगर फॉरेन करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी में चेंज ना हो सके तो MNC पेरेंट को उस करेंसी को गुड्स के साथ एक्सचेंज करना पड़ता है. So the some governments do not allow the home currency to be exchanged into the other currency. Then the earnings generated by the subsidiaries in these countries cannot be remitted to the parent through currency conversion. मतलब वो ये restriction लगाते हैं कि आप करेंसी ना लेके जाएं, करेंसी कन्वर्जन का ऑप्शन वहां पे नहीं है. तो क्या होगा? When the currency is inconvertible, an MNC parent may need to exchange it for goods to extract benefit from the project in that country. फिर आपको करेंसी को डिफरेंट गुड्स के साथ एक्सचेंज करना पड़ जाएगा. That is what is called the currency inconvertibility. So this is called the currency inconvertibility factor. Next is war. War, जंग. अब कैसी जंग है? Internal and external battles or even the threat of war can have the devastating effects. अच्छा, internal battles हैं कुछ external battles हैं. Internal battles में more they are driven from the political setup, maybe because of certain terrorist attacks जो हमने इससे पहले जिक्र किया, certain जो political incongruence है उसकी वजह से हो सकता है. many things that can happen internally और externally भी हो सकता है across the border जो states war में हैं, जो countries आपस में war में हैं. So they may have the devastating effects on the cash flows pattern of MNCs. So even if the MNC is not directly damaged due to a war, it may incur cost from ensuring the safety of its employees. अगर तो war हो जाए या war होने वाली हो
तब तो बहुत बड़ा थ्रेट है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो यू वुड लाइक टू डी इन्वेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो परहैप्स आप डी इन्वेस्ट कर लें। अगर आप उसको स्क्रीन करना चाहते हैं तो यू वुड नॉट लाइक टू एंटर इन सच काइंड ऑफ अ कंट्री जहां पे द वॉर इज अबाउट टू आउट। सो क्योंकि जहां पे भी वॉर होगी वहां पे सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपने अपनी वहां पे सब्सिडी खोली है, the safety of employee is a serious question mark. So some countries tend to engage in conflict with the neighboring countries or experience internal turmoil. This can affect the safety of employees hired by an MNC's subsidiary or by the salespeople who attempt to establish export markets for the MNC. ठीक है ना? तो जो आपने एम्प्लॉइज हायर की हैं उनकी सेफ्टी जो है दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, especially for those countries who are in the war situation. As a result of the 2003 war in Iraq, MNC's cash flows were affected in various ways. Basically students, हम ये चाहते हैं कि हमारे कैश फ्लोज इफेक्ट ना हो। MNC के बिजनेस में, मल्टीनेशनल बिजनेस में हमारा सबसे जो सीरियस कंसर्न है वो ये है कि हमारे कैश फ्लोज इफेक्ट ना हो। यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। So as a result of the 2003 war in Iraq, MNC's cash flows were affected in various ways. The war caused friction between the US and some countries in the Middle East. US और Middle East की कुछ countries के दरमियान में friction आ गई. Consequently, MNCs faced the possibility that their building or offices overseas might be destroyed and their employees might be attacked. मतलब फिर उनको ये खतरा हो गया, उनको ये fear हो गया, उनको ये डर हो गया कि उनके एम्प्लॉइज या उनकी जो बिल्डिंग्स हैं जो बाहर के मुल्कों में दे माइट बी डिस्ट्रॉयड एंड देयर एम्प्लॉइज विल नॉट बी वेरी वेरी सेफ। फर्दरमोर, डिमांड फॉर यूएस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर्स इन द मिडिल ईस्ट डिक्लाइन। इसी तरह जाहिर है जंग चल रही है तो जंग में क्या होगा, वो मुल्क भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी चीजें भी अच्छी नहीं लगेंगी, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल भी जो है ना दैट इज गोइंग टू बी लार्जली अफेक्टेड। जैसे हम लोग भी वी आर क्वाइट फंडामेंटल अबाउट सर्टेन थिंग्स। अगर हमें किसी से, अगर आप पर्सनल लेवल पे भी देख लें, अगर हमें किसी से कॉन्फ्लिक्ट है तो वी वुड नॉट लाइक टू यूज देयर प्रोडक्ट्स या उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट, या अगर पर्सनल लेवल के ऊपर आप देख लें जिससे आप बात नहीं करना चाहते, आप उससे मिलना नहीं चाहते, आप उसके घर नहीं जाना चाहते, दिस इज जस्ट लाइक दैट। वॉर भी ऐसी होती है, कंट्रीज की आपस में फाइट्स ऐसी हैं। अब जब कंट्रीज की फाइट्स आपस में ऐसी हैं, जब उस वॉर की वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी उसमें जिनके आपस में वॉर चल रही है। So the demand for the US products and services by the consumers in the Middle East declined. In addition, because of the friction between the US and the France over how the situation in Iraq should be handled. French demand for some products produced by US-based MNC also declined. To a lesser extent, there were protests by the citizens in other countries, which could have reduced the demand for products produced by US firms. This form of country list risk analysis is not limited to the US-based MNC. अब ये सिर्फ हम US के perspective में बात नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ ये example दे रही हूँ, which can be equally applied to every country and to the relationships of rest of all the overworld among countries. Friction periodically arises between many countries. Just as French consumers reduced their demand for US products during the war, US consumers reduced their demand for French wine and reduced their travel to France. US ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने कम कर दिए और फ्रांस ने US की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी कम कर दी. The French government tourist office estimated that the revenue received in France due to US tourism in 2003 was about $500 million less in the previous year. तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है that is going to be largely affected. Tourism industry भी students बहुत ज़्यादा काउंट करती है on the relationships among countries. अगर relationships among countries अच्छे नहीं है तो tourism industry is not going to flourish. Especially जो आपने revenues उस particular country के tourist से आपने receive करना था, that is going to be largely affected. So the wars, they are going to be largely affected by this thing. अच्छा, even if the MNCs were not directly affected by various protests,
there was substantially uncertainty about how the war might affect MNCs by weakening economic conditions. अच्छा, अगर इनमें से कुछ भी ना हो ना, लाइक अगर कंज्यूमर की प्रोडक्ट की डिमांड भी कम नहीं हुई और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल सेफ्टी भी सिक्योर रही है, द एम्प्लॉइज वर सिक्योर, उनकी बिल्डिंग्स भी ठीक रही हैं, फिर भी एक थ्रेट है कि ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन हो जाए और यहाँ से आपको अपना सेटअप उठा के शिफ्ट करना पड़ जाए बैक टू योर पेरेंट. So there was concern that oil prices would rise because of the possible destruction of oil wells, and higher oil prices have a direct impact on transportation and energy cost. ये जो इराक वॉर हुई थी, ज़ाहिर है they have the huge reservoirs of oil and oil wells, तो फिर उससे ये estimate किया गया कि इससे they are going to be largely affected, और oil से तकरीबन हर चीज़ की जो linkage है, वो oil prices के साथ जो linkage है हर चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा हाईली लिंक्ड अप है. लाइक दे आर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं, एनर्जी कॉस्ट हैं, दे आर स्ट्रांगली बिल्ट अप, दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड विद द ऑयल प्राइसेस. आपको पता है अगर ऑयल प्राइसेस चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो जाती है. वाई? बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. अगर हमारी ऑयल प्राइसेस हाई होंगी तो ये हमारा बहुत डायरेक्टली रेलिवेंट एक हमारा फैक्टर है दैट इज गोइंग टू इफेक्ट दैट. सिमिलरली अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी बिकॉज ऑफ वॉर, या मैं आपको उसके अलावा बता रही हूँ, एक तो हमने ये देखा कि जब एकदम सडनली वॉर शुरू हो जाए तो एनवायरनमेंट एकदम से बहुत ज़्यादा स्केरी हो जाती है. एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय की सेफ्टी नहीं रही, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, वो तो एक चीज़ होगी. उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, और स्पेशली जैसे हम ये यूएस और इराक वाला जो सिनेरियो पढ़ें उसमें ऑयल प्राइसेस की एकदम से इंक्रीज, फिर इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक कंडीशन जो है दैट इज इंटरेस्ट रेट आपका एक बहुत बड़ा अच्छा इंडिकेटर है. इंटरेस्ट रेट्स एकदम से आपके ना they are going to be affected. So higher interest rates were feared because of the substantial funding needing to finance the military spending. Military को ज़्यादा spending चाहिए, उसकी वजह से you might be expecting to have the higher interest rates. So MNCs were concerned about the potential higher cost of supplies and the potential impact of high US inflation or interest rates on exchange rates. Given all this uncertainty, MNC restricted their expansion until the impact of war on oil prices. तो impact of war था on oil prices, तो उन्होंने बहुत हद तक उसको restrict किया. The US budget deficit and the potential relationship between the US and the other countries was clear. तो स्टूडेंट्स वॉर को हमने बड़ी डिटेल से देखा. आपने देखा कि वॉर के बहुत सारे डिवेस्टिटेटिंग इफेक्ट्स हैं ऑन दी MNCs कैश फ्लोज, सब्सिडरी के कैश फ्लोज से, जो कि डायरेक्टली उसने रेमिट बैक करने हैं टू दी पेरेंट और री इन्वेस्ट भी करने हैं. तो वॉर की कंडीशन में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ सीरियस क्वेश्चन मार्क, एंड यू हैव टू लुक एट दैट. अगर वॉर होने जा रही है या होने लगी है या हो गई है, तो देन यू आर गोइंग टू चेंज योर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली. इन्वेस्टमेंट को भी और फाइनेंसिंग डिसीजंस को भी आपने रिवाइज करना है टू री लुक एट. और अगर वो पहले से चल रही है और आप उस कंट्री में एंटर होना चाह रहे हैं और या फिर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो देन यू नीड टू बी केयरफुल. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि हमारे बिजनेस को इस चीज से किस हद तक फर्क पड़ सकता है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. देन इज ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी कैन कॉम्प्लिकेट बिजनेसेस. ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा फिनोमिना है विच इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द बिजनेस. Another country risk factor is the government bureaucracy, which can complicate an MNC's business. Although this factor may seem irrelevant, it was a major deterrent of MNCs that considered projects in Eastern Europe in early 1990s. Many of the Eastern European governments were not experienced at facilitating the entrance of MNC into their markets. अगर आपके सेटअप के अंदर MNCs को वेलकम करने का या FDIs को वेलकम करने का कोई तरीका नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, तो देन अगेन यू विल बी इन ट्रबल. सो दैट इज अ बैरियर टू द MNC. अगर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है that is built up and that is very very complicated and that is not welcoming, और उसके अंदर कोई provision नहीं है for that particular thing. So corruption. Next is corruption. Corruption can increase the cost of conducting business or reduce revenue. अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपने देखना है, स्पेशली दी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, दी डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम अ लॉट. और इस करप्शन को हम क्या करते हैं, करप्शन कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस और रिड्यूस रेवेन्यू. ज़ाहिर है करप्शन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है आपके जो रेवेन्यूज हैं
cash flows, and they are going to be largely affected by this. So corruption can adversely affect an MNC's international business because it can increase the cost of conducting business, or it can reduce revenue. Various forms of corruption can occur between firms or a firm and a government और firm के दरमियान में, or among the firms it can happen. For example, an MNC may lose revenue because a government contract is awarded to the local firm that paid off a government official. किसी local firm को contract मिल गया किसी government का. Why? क्योंकि किसी government official का वो contract था. Law and their enforcement vary among countries. However, for example, in the US, it is illegal to make a payment to the high-ranking government official in return for the political favor, but it is legal for the US firms to contribute to a politician's election campaign. US के अंदर ये तो legal है कि you may go for the contribution for a politician's election campaign, लेकिन ये इलीगल है कि किसी को फेवर देने के लिए आप किसी हाई ऑफिशियल को ब्राइब करें. सो ब्राइबरी और या इस तरह की जो चीजें दे आर हाईली इलीगल. वैसे भी इलीगल है एथिकली भी, और अगर हम अपने आप को भी देखें, अपने रिलीजन को भी देखें, तो दिस इज हाईली अनएथिकल एंड दिस इज फॉरबिडन. लेकिन वही चीजें जो हम फॉलो नहीं करते, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर ऑन, और करप्शन इज वन ऑफ दोज. अच्छा, करप्शन के अंदर भी फिर हमने ये है कि सिंस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो हम करप्शन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज. और करप्शन इंडेक्स को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये पब्लिश्ड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल डाटा है. ऑल्दो द सोर्स इज क्वाइट ओल्ड बट स्टिल इट इज रेलिवेंट जस्ट टू टेल यू अबाउट दैट व्हाट इट इज एक्चुअली. सो द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2003 सोर्स है इसकी. आप देखें, मैक्सिमम रेटिंग इज 10 और हाई रेटिंग्स इंडिकेट लो करप्शन. अब इसके अंदर जो क्लोजर टू 10 है उनको आप समझ लें कि वो दे आर लेस करप्ट. ठीक है ना, जो 10 से क्लोज है, यानी जिनका नंबर हाई है या जिनका रैंक हाई है, उसका मतलब ये है कि दे आर लेस करप्ट. फॉर एग्जांपल फिनलैंड 9.7 लेस करप्ट, डेनमार्क 9.6, न्यूजीलैंड 9.5, सिंगापुर 9.4, 9.3 सो ऑन, और लास्ट में आता है रशिया, उससे पहले इंडिया, चाइना. सो करप्शन is quite high in Russia, in India, in China, in Mexico, Czech Republic, Brazil. These are the countries. तो आप ये देख लें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे आपका करप्शन इंडेक्स that is quite high. So you need to look at the corruption index. अगर पब्लिश्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो तो आप उसके करप्शन इंडेक्स को जरूर देखें whenever you want to enter into the international market or the international country. Now the financial risk factors. Financial risk factors, the current and the potential state of a country's economy is important since a recession can severely reduce demand. अच्छा, आपने ये भी देखना है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल इस पर कैसा जा रहा है. इज इट इन दी ये दो उसके फेजेस हैं. एक आपका अपवर्ड स्विंग है, क्या इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही है या क्या इकोनॉमी रिसेशन की तरफ आ रही है. अब इस इकोनॉमिक साइकिल में वो कंट्री किस जगह के ऊपर है. द करंट एंड द पोटेंशियल स्टेट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस आ रिसेशन कैन स्वेयरली रिड्यूस डिमांड. जब ये साइकिल जो है इकोनॉमिक साइकिल ये नीचे की साइड पे आ रहा होगा तो इट इज गोइंग टू लार्जली रिड्यूस द डिमांड of certain products. A country's economic growth is dependent on several financial factors. किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है that is dependent on many financial factors, जिसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, especially which are relevant to the multinational business setup, which includes interest rates, exchange rates, inflation, etc. Interest rates, higher interest rate tend to slow the growth of an economy. अगर इंटरेस्ट रेट्स किसी इकोनॉमी में हाई होंगे तो इट इज गोइंग टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री and reduce the demand of the MNC's product. Low interest rates often stimulate the economy and increase demand for the MNC's product. Exchange rates. Exchange rates can influence the demand for the country's export, which in turn affect the country's production and income level. A strong currency may reduce the demand for the country's export, increase the volume of product imports by the country, and therefore reduce the country's production and national income.
कंट्री की प्रोडक्शन और नेशनल इनकम में फर्क पड़ेगा अगर उसकी करेंसी वीक है. A very weak currency can cause speculative outflows and reduce the amount of funds available to finance growth for the business. तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी हमारे पास अगर हमारी करेंसी जो है वो वीक है. इन्फ्लेशन is very important. Inflation can affect consumers' purchasing power and therefore their demand for an MNC's goods. It also indirectly affects a country's financial condition by influencing the country's interest rates and currency value. A high level of inflation may also lead to the decline in the economic growth. किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई है, that is going to largely affect the country's economic growth. Most financial factors that affect a country's economic condition are difficult to forecast. Thus, even if an MNC considers them in its country risk assessment, it may still make poor decisions because of an improper forecast of the country's financial factors. अच्छा, country के ये जो financial factors मैं आपको बता रही हूँ, such as interest rates हो गए, exchange rates and inflation, though there are methods to forecast all these financial factors, but still it is very very difficult to forecast all these factors appropriately. Now the type of country risk assessments. हम country risk की क्या assessments हैं, उसकी क्या types हैं, how do we do it? Number 1 is the macro assessment and number 2 is the micro assessment. एक हम macro level पे देखेंगे और एक हम micro level पे देखेंगे. अब वो क्या है? A macro assessment of the country risk is an overall risk assessment of a country without considering the MNC's business. फिलहाल आप MNC के business को एक side पे कर दें and you are going to look at the bigger picture that how the macro assessment of the country risk is an overall risk assessment of a country without looking at the MNC business. आपने उस पूरे मुल्क की overall condition देखनी है, overall picture देखनी है. अब वो क्या है? A macro assessment model should consider both the political and the financial characteristics of the country being assessed. दो चीजें बहुत important है, एक है आपका financial और दूसरा आपका political. So macro assessment में we will be looking at the country's financial factors and country's पॉलिटिकल फैक्टर्स. आप फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखेंगे और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखेंगे कंट्री की. आपने एमएनसी के बिजनेस को कुछ नहीं इस वक्त देखना, आपने सिर्फ कंट्री के फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखना एंड यू विल बी लुकिंग एट द पॉलिटिकल फैक्टर्स. व्हाट आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स? पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड द रिलेशनशिप ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट विद द एमएनसीज होम कंट्री गवर्नमेंट. उनका आपस में कैसा पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन द होस्ट कंट्री टुवर्ड्स द एमएनसीज गवर्नमेंट. उनका लोगों का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट, द हिस्टोरिकल स्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट, द vulnerability of the host government to the political takeovers and the probability of war between the host country and the neighboring countries. ये वो सारे स्टूडेंट्स फैक्टर्स हैं जो हम इससे पहले पॉलिटिकल कंडीशन और वॉर की सिचुएशंस के साथ हम पढ़ चुके हैं. दीज आर दी मैक्रो असेसमेंट फैक्टर्स जो कि हम करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसके अंदर हम एंटर होना चाह रहे हैं फॉर डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस. Number 2 is the financial factors. What are the financial factors? The financial factors of a macro assessment model should include GDP growth, inflation trend, government budget level, interest rates, unemployment, the country's reliance on the export income, BOT, balance of trade, balance of payments, and foreign exchange controls. This is the list of financial factors could easily be extended to several pages. ये मैंने आपको सिर्फ उनमें से चंद बताई हैं कि आप लार्ज स्केल के ऊपर क्या कुछ देखेंगे. जीडीपी देखेंगे, देन इन्फ्लेशन देखेंगे, गवर्नमेंट बजट लेवल्स देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे. ये वो मेजर फैक्टर्स हैं दैट यू आर गोइंग टू लुक एट फॉर द फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी विच इज द मैक्रो असेसमेंट. तो दिस मैक्रो असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी. नंबर 1 इज द फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड नंबर 2 इज पॉलिटिकल. पॉलिटिकल में हमने वो सारे थ्रेट्स पढ़े, वो सारे फैक्टर्स पढ़े दैट वर गोइंग टू लार्जली इफेक्ट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिटवीन द होस्ट गवर्नमेंट एंड द एमएनसी. जबकि फाइनेंशियल फैक्टर्स में वो सारे इकोनॉमिक रिलेटेड वेरिएबल्स एंड इंडिकेटर्स पढ़े विच आर गोइंग टू अफेक्ट लार्जली द इकोनॉमिक
model of that particular country. Now the micro assessment. एक आप बड़े लेंस से देखेंगे, फिर आप एक छोटे लेंस से देखेंगे. मैक्रो मीन्स कि आपने सिर्फ कंट्री को देखा, आप एक छोटा लेंस देखें और सिर्फ उस पर्टिकुलर जो एमएनसी का बिजनेस है उसके हवाले से देखें कि आप ये जो होस्ट कंट्री है, हाउ इट इज कंड्यूसिव फॉर डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री. So the micro assessment of the country risk is the risk assessment of a country with respect to the MNC's type of business. So MNC का type of business, that is very very important to look at the MNC's the very own type of business. The overall assessment thus consists of macro political and macro financial and micro political and micro financial. Basically it is financial and political both at macro and micro level. Micro level पे क्या होगा? Micro level पे suppose for example, since Nike conducts a large amount of international business, it must monitor country risk in many countries. Nike should be affected by the country risk in several ways. First, a conflict between the US and a specific foreign country could cause either the foreign country's government or its people to vent their anger against a Nike subsidiary in that country. मतलब अब जो नाइकी का पेरेंट कंट्री है, अगर वो किसी और जगह पे जाकर सब्सिडी बनाना चाह रहा है, अगर उन दोनों कंट्रीज के दरमियान में आपस में कोई रिफ्ट चल रही है, तो अगेन इट इज गोइंग टू हैव द इफेक्ट ऑन द नाइकीज प्रोडक्ट सेल्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. दस नाइकी कुड बी अ टारगेट सिंपली बिकॉज इट इज व्यूड एज अ यूएस कंपनी. समझ आ रहा है ना? अब वो सिर्फ उसका ताल्लुक यूएस कंपनी के साथ है, तो इसलिए इट कैन बी अफेक्टेड इवन इफ ऑल द एम्प्लॉयज एट द सब्सिडरी आर लोकल. यहाँ तक कि अगर सब्सिडरी के सारे लोग जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं वो लोकल हैं, लेकिन चूंकि उसका नाम जो है वो यूएस के साथ अटैच है, तो अगर यूएस कंट्री की उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई रिफ्ट है, तो देन अगेन जो उसकी प्रोडक्ट की सेल है दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क. सेकंड, अ चेंज इन द फॉरेन गवर्नमेंट कुड रिजल्ट इन अ न्यू टैक्स लॉज and the other restrictions imposed on subsidiaries of US firms or firm from any other country that are based there. Third, other local shoes manufacturers could possibly use government ties to impose more restriction against Nike so that they could have a competitive advantage in the country of concern. Fourth, Nike subsidiary could be adversely affected by other political problems that cause a deterioration in the economic condition in that country. Any of these events could cause an increase in the subsidiary's expense or a decline in its revenue. तो ये सब वो चीजें थी जिसका इफेक्ट हो सकता है on the country, on particular products revenues. So these are very very important. Note that there is clearly a degree of sensitivity in identifying the relevant political and financial factors. अच्छा, आपने माइक्रो और मैक्रो दोनों पे देखने हैं, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज रेलिवेंट टू योर सेटअप. आपके सेटअप के साथ क्या चीज रेलिवेंट है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल फैक्टर्स and to determine the relevant importance of each factor. And also ये जो macro और micro political and financial factors हैं, you are going to give the relative importance to each factor. So you need to determine the relative importance of each factor in that. पहली बात तो ये कि आप ये find करें कि relevant उनमें से कौन है, फिर उस relevant में से भी relative importance find करें. Like हमने अगर दो factors निकालें, एक की इंपॉर्टेंस 80% है और दूसरी की 20% है, तो वी नीड टू गिव देम द परसेंटेजेस एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिस्क. देन प्रेडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली. आप सब्जेक्टिव वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव बना लें. सब्जेक्टिव का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यू आर गुड, दैट इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट. लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगे गुड को कैसा कहना चाहिए कि आप ए ग्रेड स्टूडेंट हैं, बी ग्रेड स्टूडेंट हैं या सी ग्रेड स्टूडेंट हैं, तो देन आई मेक दिस स्टेटमेंट इन एन ऑब्जेक्टिव फैशन, राइट. तो हम सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए वी गिव द नंबर्स एंड वैल्यूज टू दैट. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. नाउ वी कम टू द टेक्निक्स ऑफ असेसिंग कंट्री रिस्क. द चेकलिस्ट अप्रोच प्रोवाइड्स involves rating and weighting all the macro and micro political and financial factors to derive an overall assessment of the country risk. अच्छा, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी असेसमेंट के अंदर. एक था आपका माइक्रो और एक था आपका मैक्रो. माइक्रो पॉलिटिकल एंड मैक्रो पॉलिटिकल एंड माइक्रो पॉलिटिकल एंड मैक्रो पॉलिटिकल. सिमिलरली मैक्रो फाइनेंशियल एंड माइक्रो फाइनेंशियल. दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने चेकलिस्ट अप्रोच बनाई विच इन्वॉल्व
रेट किया उनको एंड देन वेट किया, उनकी रेटिंग क्या है और फिर उसकी रिलेटिव वेटेज क्या है, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया एंड देन वी कैन कैलकुलेट दी रिस्क असेसमेंट. वी विल बी कैलकुलेटिंग इट फॉर यू, डोंट वरी, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. Another technique is the Delphi technique. Delphi technique says it involves collecting various independent opinions and then averaging and measuring the dispersion of those options. इसका मतलब यह है कि हम independent opinions ले लें. Usually these are the expert opinions that we take from those who can give us the clear idea what is happening or what is their opinion about the country's political and about the financial environment. और उसके हवाले से फिर हम उनको एवरेज करते हैं एंड देन मेजर द डिस्पर्शन ऑफ दोज ऑप्शंस. दिस इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक. तो स्टूडेंट्स, वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. होप यू हैव एंजॉयड इट. कंट्री रिस्क एनालिसिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो और जिसकी प्रॉपर इवेल्युएशन एंड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, especially when you are entering into a country for the screening, for monitoring and for revising. So dear students, this was all about country risk analysis. We will be continuing with the techniques in the next lecture, inshallah. See you next time. Have a nice day. Allah Hafiz.